Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. The content that we will going to discuss today, it is from the course titled Curriculum Design and Instruction. The course code is EDUC 2118. For today's discussion, I have the following learning objectives for you. First of all, I will going to give you a recap in which I already been explained to you in the last presentation, the solar taxonomy, but we will going to start it from the recap and review it quickly that what it was. The second learning objective is to actually discuss surface and deep learning in the last two levels of solar taxonomy that we didn't discuss in the last presentation, and in this presentation we will going to discuss it and complete it. So the material, I have taken it from the reference given below on the page, and I will going to share this reference with you in your Google Classroom as well. Let's have a quick review that what actually is a solar taxonomy and what we have done in the last time. So solar taxonomy actually describes level of progressively complex understanding. What does it means by that? With the help of a solar taxonomy, teachers and students both come to know about it, their level of understanding about their subjects. So some of the students have just basic level of understanding about their subject, some have a better level of understanding, and some have a very complex, sophisticated and higher level of understanding about different concepts of their specific subject areas. So with the help of a solar taxonomy, teachers once come to know about it, that at which level the student understanding is, they can actually make up more progressive activities for a student to move on from that level to a better level of understanding. In the same way, when a student come to know about it, what is their level of understanding about their area of study, what they can do, they can plan their studies in a way in which they can move further from that specific level of understanding to a better and progressive level of understanding. One good thing about the solar taxonomy is that it is relevant to different subjects and different disciplines, and it's mean by that across the discipline, teacher and students can use it and get benefit from it. Solar taxonomy understanding is conceived as an increase in the number and complexity of connections students make as they progress from incompetence to expertise. So whenever we enter in any program in our first semester, in our first year, in the beginning, before that we don't know that subject, we always actually have understanding level that is incompetent about the concept of that specific subject. But as we progress, as we study, as we move on, as we pass the subject, as we learn more, our actually understanding increases with the passage of time, and we can move on from the level of incompetence to the level of expertise. That is actually the key purpose of academia, to take the student from the level of very basic understanding towards level of expertise in their specific subject, so they can perform well in their jobs and they can do more complex and sophisticated higher order thinking process related problem solving stuff in their jobs and in their respective careers. The surface and deep learning, what they are and what are the differences. So I hope that you remember that I told you that these concepts, surface and deep learning, actually surface learning is on incompetent level, and deep learning level is solar taxonomy expert level of understanding your own subject. So solar taxonomy consists of two major categories, each containing two increasingly complex stages. And what we discussed last time, that actually there are 5 levels of solar taxonomy. जो solar taxonomy का पहला level है उसको हम कहते हैं प्री स्ट्रक्चर्ड लेवल. एट द प्री स्ट्रक्चर्ड लेवल वो लेवल है जब स्टूडेंट क्लास में एंटर होता है
और वो नहीं जानता जो भी वो सब्जेक्ट पढ़ रहा होता है उसके बारे में कुछ भी, क्योंकि उससे पहले उसकी कोई फाउंडेशन नहीं होती, वो सब्जेक्ट उसने उससे पहले पढ़ा नहीं होता। और इसकी मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि लेट्स टेक एग्जांपल, जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में फर्स्ट क्लास में एंटर होते हो और आपने वो सब्जेक्ट पहले नहीं पढ़ा होता, तो आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल उस सब्जेक्ट के बारे में बिल्कुल प्री स्ट्रक्चर्ड लेवल पे होता है, जहाँ आप उस सब्जेक्ट की किसी भी चीज़ के बारे में एक्चुअली नहीं जानते होते। सो ये वो लेवल है जिसमें आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल लेट्स से एट द थ्रेशहोल्ड है, एट द ज़ीरो है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे थियरिस्ट उस लेवल को कंसिडर ही नहीं करते। हम शुरू करते हैं यूनी स्ट्रक्चर्ड लेवल से। यूनी स्ट्रक्चर्ड लेवल का मतलब ये होता है कि स्टूडेंट्स की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग अपने सब्जेक्ट के बारे में या एरिया के बारे में डेवलप हो जाती है। सो आपके यूनी स्ट्रक्चर्ड और मल्टी स्ट्रक्चर लेवल जो हैं सोलो टेक्सोनॉमी के, ये पहला और दूसरा लेवल है। ये दोनों लेवल सरफेस लर्निंग कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें स्टूडेंट ज़्यादातर मेमोराइज करते हैं, रट्टा मारते हैं, ढेर सारे कॉन्सेप्ट, इंफॉर्मेशन, जॉर्गन्स, आइटम्स और बेसिक जो आपकी फाउंडेशनरी नॉलेज होती है उसको याद करते हैं, इतना याद करते हैं कि वो उनकी फिंगर टिप्स में आ जाए। सो याद करना, मेमोराइजेशन जो है, ये क्वांटिटेटिवली ज़्यादा काम हो सकता है, डिफ़िकल्ट हो सकता है, क्योंकि आपको इतनी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन याद की जाती है, उसमें आपको वक्त लगता है, उसमें आपकी एफर्ट लगती है, लेकिन इसमें डेप्थ नहीं होती। आप रट्टा मार के डेप्थ के ऊपर नहीं आ सकते। कैसे? जस्ट टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल। हो सकता है आपने कुरान मजीद की बहुत ढेर सारी सूरतें याद की। क्या आपकी सूरतें सिर्फ याद कर लेने से, मेमोराइज कर लेने से, क्या आप ये कह सकते हैं कि आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कुरान मजीद की उन सूरतों के बारे में वही है जो किसी आलिम का हो सकता है, जिसने फ़िक्र की और कुरान की और हदीस की तालीम ली होगी पिछले 20 साल से, और वो अरबी ज़बान पे भी कमाल रखता होगा, और वो इन तमाम जो भी कुरान मजीद की सूरतें उतरी हैं उनकी तमाम से आपको सबाक से वाकिफ़ होगा। सो उसका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल होगा मुख्तलिफ सूरों के बारे में, वो हो सकता है डीपर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। उसका डीपर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकता जिसने सिर्फ रट्टा मारा हुआ है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप सूरह इखलास सुना दो तो आप फ़ौरन सुना दोगे, लेकिन मैं अगर ये कहूँ कि सूरह इखलास का आपकी ज़िंदगी से और अखलाकियात से और तौहीद से क्या ताल्लुक़ है, तो शायद ऐसे सवालात का आप एक बुनियादी बेसिक मामूली जवाब तो दे दो, लेकिन एक आलिम इंतहाई खूबसूरत, गहरा और कॉम्प्लेक्स जवाब देने के काबिल हो सकता है। तो ये फ़र्क होता है आपकी क्वांटिटी का और क्वालिटी का। सो डेफिनेटली सरफेस लेवल पे हमारे पास क्वांटिटी होती है पर क्वालिटी नहीं होती। आपकी डिफ़िकल्टी हो सकती है लेकिन डेप्थ नहीं होती। जैसे जैसे स्टूडेंट्स के अपने एरिया में अंडरस्टैंडिंग लेवल यूनी स्ट्रक्चर, मल्टी स्ट्रक्चर से रिलेशनल और एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे आता है, ये वो लेवल आता है जहाँ से स्टूडेंट को अपने सब्जेक्ट में, कंटेंट एरिया में डेप्थ पैदा होना शुरू हो जाती है। ऐसी अंडरस्टैंडिंग पैदा होती है जो कि एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे जाती है, हायर ऑर्डर पे जाती है, और इसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स और कॉम्पिटेंसी के लेवल पे आ सकती है। सो टीचर्स और स्टूडेंट को कैसे पता चलता है कि उनका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है? जब स्टूडेंट टेस्ट देते हैं और टेस्ट में वो सवालात के जवाब देते हैं, तो टीचर्स उनके जवाबात पढ़ के ये बता सकते हैं कि ये जवाबात रट्टाबेस हैं। इन जवाबात में वही एग्जांपल्स दी गई हैं जो किताबों में दी गई थी, या बिल्कुल बेसिक एग्जांपल्स हैं, या ये जवाबात एक इंतहाई खूबसूरत जवाबात हैं जिसमें मल्टीपल एस्पेक्ट्स को मिला के एग्जांपल दी गई हैं, मल्टीपल सब्जेक्ट्स को मिला के दी गई हैं, इसमें रिसर्च का हवाला दिया गया है और इसे ज़्यादा इन डेप्थ तरीके से लिखा गया है। सो सिर्फ स्टूडेंट्स के सवालात के जवाब से ही पता चल जाता है कि उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल उनके सब्जेक्ट में कैसा है। सो इफ़ यू कम टू नो अबाउट द ब्लूम्स taxonomy levels, it will help you to determine what is the level of understanding of a student in his or her subject. Then we have gone through that slide, and in that slide you can see कि एक तरफ हमारे पास लेफ्ट में सरफेस लर्निंग के लेवल्स हैं, दूसरी तरफ डीप लर्निंग के लेवल्स हैं, और
सबसे पहले आ रहा है हमारे पास प्री स्ट्रक्चर्ड लेवल. सो दैट इज़ ऑलवेज ऑब्वियस. जब भी हम किसी क्लास में एंटर होते हैं जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते, उस सब्जेक्ट को हमने कभी पढ़ा नहीं होता, तो हम सारे के सारे हमेशा क्या होते हैं, प्री स्ट्रक्चर्ड लेवल पे होते हैं. सो इसका सिंपली ये मतलब बनता है कि जब भी हम किसी नए प्रोग्राम में एंटर होते हैं, जब हम कोई नया कोर्स पढ़ते हैं, तो हमारा लेवल ऑफ प्रोग्रेशन अंडरस्टैंडिंग का यही होता है. पहले हम कुछ नहीं जानते, प्री स्ट्रक्चर, फिर हम यूनि स्ट्रक्चर लेवल पे आ जाते हैं जहाँ हम चीज़ों को याद करते हैं, मेमोराइज़ करते हैं, उन्हें अलग अलग समझने की कोशिश करते हैं और उसे रट्टा मार लेते हैं. फिर मल्टी स्ट्रक्चर लेवल पे आ जाता है जब हम दो एक चैप्टर्स को, चार पांच कॉन्सेप्ट को मिला के याद करने की कोशिश करते हैं. और ऐसे ऐसे फिर हम रिलेशनल और एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे आ जाते हैं. वन थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इट, कि कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होता कि जो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी स्टेज को क्रॉस किए बगैर आपकी एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट डीप लर्निंग स्टेज तक आ जाए. सो ये तमाम स्टेजेस जो हैं डीप लर्निंग की से पहले वाली, एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट से पहले वाली, ये प्रीरेक्विजिट है. दैट्स हाउ एवरीबॉडी लर्न्स. That's how everybody develop understanding in their area of studies or in different subjects and content areas. Then that figure we discussed last time, in the figure you can very simply see कि इसमें हायरार्की है और आपके सबसे निचला लेवल है इनकॉम्पिटेंस का. जैसे जैसे आप अगले लेवल पे आते जाते हो, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपका सब्जेक्ट में बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उस सब्जेक्ट के बारे में आपकी कॉम्पिटेंस बढ़ती चली जाती है. सो दैट वाज द लास्ट स्टफ दैट वी डिस्कस्ड. सो हमने 3 लेवल्स पढ़े, प्री स्ट्रक्चरल, यूनि स्ट्रक्चर और मल्टी स्ट्रक्चर लेवल्स. और हमने तीनों लेवल्स के सेलिएंट फीचर भी पढ़े कि तीनों लेवल्स में स्टूडेंट्स की जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है अपने सब्जेक्ट के बारे में वो कैसा होता है, और टीचर्स को कैसे पता चलता है जब वो सवालात करते हैं, चाहे वो क्विज़ दें, चाहे वो क्लास में क्वेश्चन आंसर करें, चाहे वो असेसमेंट दें, चाहे वो असाइनमेंट दें, चाहे वो टेस्ट लें. इन एनी फॉर्म ऑफ असेसमेंट जब स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्सेस टीचर्स के पास आते हैं और टीचर्स फिर उन रिस्पॉन्सेस को पढ़ते हैं और उसके बाद उन्हें अंदाज़ा होता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो किस लेवल पे खड़े में, उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल इस सब्जेक्ट में क्या है. सो हम थे प्री स्ट्रक्चर, यूनि स्ट्रक्चर, मल्टी स्ट्रक्चर लेवल पे. और हियर यू कैन सी कि हमने एक सवाल किया था स्टूडेंट से कि व्हाई यूज़ द सोलो टैक्सोनॉमी टू क्रिएट लर्निंग आउटकम्स. सो इस सवाल का जवाब 3 मुख्तलिफ स्टूडेंट जो 3 मुख्तलिफ लेवल्स पे खड़े हैं उन्होंने क्या दिया. प्री स्ट्रक्चर लेवल का जो स्टूडेंट था, जो क्लास में नया नया एंटर हुआ था और उसने ये सब्जेक्ट आज से पहले कभी नहीं पढ़ा था, उसे सोलो टैक्सोनॉमी के बारे में कुछ भी नहीं पता था. जब उसने 40 मिनट का लेक्चर सुना और उसके बाद उससे ही सवाल पूछा टीचर ने कि व्हाई यूज़ द सोलो टैक्सोनॉमी टू क्रिएट लर्निंग आउटकम्स, तो मोस्ट प्रॉबेबली उस स्टूडेंट का जवाब क्या था, आई डोंट नो. व्हाई? क्योंकि स्टूडेंट डजंट हैव any level of understanding about that specific content. और मे बी स्टूडेंट ने क्या कहा, वी आर सपोज टू, या दैट्स व्हाट गुड लर्निंग इज़ ऑल अबाउट. ये तीनों सवालों के जवाब हमें क्या बता रहे हैं कि स्टूडेंट एक्चुअली नो नथिंग अबाउट द सोलो टैक्सोनॉमी एंड इट्स हाउ वी कैन यूज इट इन क्रिएटिंग लर्निंग आउटकम्स. व्हाई? Because they don't know about this subject. उनका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बहुत बेसिक लेवल पे. जब स्टूडेंट्स को टीचर पढ़ाते रहते हैं और स्टूडेंट प्रोसीडिंग वीक्स में मज़ीद पढ़ते रहते हैं, खुद स्टडी करते हैं, स्टडी हैबिट्स डेवलप करते हैं, मल्टीपल टेस्ट से गुजरते हैं, असाइनमेंट्स देते हैं, और उन असाइनमेंट्स में और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में स्टूडेंट्स की मिसकंसेप्शंस टीचर्स क्लियर करते रहते हैं, उनके सवालात के जवाब देते रहते हैं, उनकी गलतियों को ठीक करते रहते हैं. और विद द हेल्प ऑफ अ प्रैक्टिस स्टूडेंट प्री स्ट्रक्चर लेवल से उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल कहाँ पहुँच जाता है, यूनि स्ट्रक्चर लेवल पे. अच्छा, जब स्टूडेंट यूनि स्ट्रक्चर लेवल पे आ जाते हैं तो आपके इसी सवाल का जवाब वो क्या करते हैं कि उन्होंने सोलो टैक्सोनॉमी के जो मल्टीपल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, पर्पसेस होते हैं, इसके एडवांटेजेस होते हैं, उनके जहन में होते हैं, उन्होंने याद किए होते हैं, और आपको मल्टीपल स्टूडेंट उनमें से कोई ना कोई चंक्स बता देते हैं.
कि why use the Solow taxonomy to create learning outcome, because हो सकता है कि स्टूडेंट बताए कि it helps you choose appropriate expectation. कोई दूसरा स्टूडेंट कहे कि it helps you to use outcomes to encourage deeper approaches to learning. So student एक कॉम्प्लेक्स मल्टीपल कॉन्सेप्ट के छोटे छोटे अलग पार्ट, आइसोलेटेड पार्ट्स आपको रिस्पॉन्स में बता देते हैं, जो भी उन्हें याद आते हैं, जिसको भी वो रिकॉल कर पाते हैं. So they give you some kind of answer, and this answer is actually written in the books or in the notes that you have given to them. जब स्टूडेंट्स इन कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहते हैं और इस पर मल्टीपल असाइनमेंट्स करते रहते हैं और टीचर उन्हें मल्टीपल लेवल की लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते रहते हैं, और तो ये स्टूडेंट यूनी स्ट्रक्चर्ड लेवल से मल्टी स्ट्रक्चर लेवल की अंडरस्टैंडिंग तक पहुंच जाते हैं इस सब्जेक्ट के बारे में. जब एक स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग लेवल मल्टी स्ट्रक्चर होता है तो फिर वो इस सवाल का क्या जवाब देगा. It helps you choose appropriate expectation, plan assessment strategy, organize sequence of learning experiences, and use outcome to encourage deeper approaches to learning. So आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एक मल्टी स्ट्रक्चर्ड अंडरस्टैंडिंग रखने वाले स्टूडेंट्स का आंसर कितना कंप्लीट है, कितना कॉम्प्रिहेंसिव है, इसमें कितने ढेर सारे कॉम्प्लेक्स और टोटल आपके आइडियाज़ मौजूद हैं, और ये आंसर कितना कंप्लीट आंसर है. आपको ये कैसे पता चला? जब आपने आंसर पढ़ा यूनी स्ट्रक्चर्ड स्टूडेंट का, जब आपने आंसर पढ़ा प्री स्ट्रक्चर्ड लेवल पे अंडरस्टैंडिंग रखने वाले स्टूडेंट्स का. सो दैट वाज स्टफ दैट वी ऑलरेडी हैव डन in our previous discussion. We need to move further and try to explore what are the last two levels of understandings and see what they are. The last two levels of Solow taxonomy, actually they are stages of deep learning. And we already discussed what the deep learning is. Deep learning is a learning, actually that is a learning of an expert. And it needs time, it needs lots of reading, it needs lots of effort, work, and multiple opportunities where actually students move on from their surface learning way of thinking and understanding of their subject towards a more deeper, sophisticated level of understanding in their subject. So in the deep learning, the first stage of Solow taxonomy or the third stage of Solow taxonomy is relation. In relational, students need to be connected ideas to each other and explained in some way. Relationships are essential to stage of deep learning. Demand for relationship to be understood at these stages forces student to reconcile inconsistency between ideas through synthesis or evaluation. So अब आप जिन वर्ड से गुजर रहे हैं वो हैं synthesis और evaluation. I'm sure कि आपको Bloom's taxonomy की cognitive domain याद आ गई होगी, जिसमें synthesis और evaluation higher order thinking process का हिस्सा थे. और मैंने आपको बताया था कि higher order thinking process में जो synthesis और evaluation है, mostly actually it is a part of a research. To solve a synthesis level question or to answer the evaluation level assessment, it is not an easy task. It takes time, it takes data, it takes lots of effort. Sometimes it takes weeks or months or year to find out the solution to your research problem or get the answer to your research problem or synthesize the information or take out evaluative answer to the question. So ये एक हायर ऑर्डर मेंटल प्रोसेसेस रिक्वायर करते हैं. डेफिनेटली ये कॉम्प्लेक्स किस्म के सवालात होते हैं और उनके जवाब ज़्यादा टाइम लेते हैं. क्यों ज़्यादा टाइम लेते हैं? इसीलिए ज़्यादा टाइम लेते हैं कि the demand for relationship to understood at these stages forces a student to reconcile inconsistencies between ideas. जो भी आइडियाज़ होते हैं स्टूडेंट बार बार उनको स्क्रूटनाइज करते हैं, क्रिटिकली देखते हैं और तमाम इनकन्सिस्टेंसीज उसमें से निकालते हैं. किसके थ्रू? अगर उनको सिंथेसिस और एवेलुएशन लेवल की थिंकिंग प्रोसेस उनकी डेवलप हो चुकी हैं तो.
Learning at these more qualitative level, it involves discovering, creating meanings. So now at this level, learning is not quantitative. It is not in numbers that how many things you remember. At this level, learning is more qualitative. So qualitative means it is actually in depth, or it involves discovering or creating meaning instead of copying meaning, or just memorizing and recalling whatever you have read out in your books or maybe in your notes. So definitely discovering or creativity is a higher order mental process, and it is the attribute that require the highest level of understanding in your subject. Now, the critical thinking. It is important in any meaningful way prior to the relational level, require a student to grasp the relationship between ideas, to find similarities, differences, spot inconsistencies, make judgment about reliability, accuracy, compare points of view, integrate evidence in order to deduce principle for decision and action. Now, it is a complex sentence. I can understand it. Uh, Students, what you need to understand it. आपकी जो पूरी रिसर्च है, जो आप मास्टर्स में करोगे, जो आप एमफिल में करोगे, जो आप पीएचडी में करोगे, जो आपको अपनी कैरियर में परसू करनी पड़ेगी, वो सारी की सारी रिसर्च इस पैराग्राफ में लिखी है. एक्चुअली क्रिटिकल थिंकिंग क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग इटसेल्फ एक हायर ऑर्डर मेंटल प्रोसेस है. ये एक हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल है जिसके अंदर आपका एनालिसिस, सिंथेसिस और एवेलुएशन तीनों चीज़ें शामिल हैं. Once you know how to analyze data, once you know how to make a synthesis out of the information, once you know how to evaluate your findings and share your decision making with your community, so this all is actually a critical thinking process. And whatever the sentence, in the sentences, the vocabulary that you are reading about, find out similarities, differences, judgment about reliability and accuracy, compare point of view, integrate evidence, deduce, decision, action, they all are related to research. अब आप जैसे जैसे आगे पढ़ते जाओगे और जब आपको रिसर्च पढ़ोगे तो यू विल कम टू फाइंड इट आउट एक्चुअली रिसर्च करने के लिए वी नीड these higher order mental processes. और कोई भी फील्ड में जो शख्स एक्सपर्ट होता है अपने एरिया में, वो एक्चुअली एक एक्सपर्ट रिसर्चर ही होता है. The effective critical thinking is dependent on theoretical and meta-theoretical, that is theorizing about theorizing knowledge. So here is another complex sentence for you, and you can find out the meaning of it by thinking over it and try to find it out from the Google what it is. At the relational level, a student can integrate ideas into a whole, recognizing relationship, connecting ideas to each other. So, इससे previous level पे students को पता था कि there are multiple parts of a whole, लेकिन they can't actually get an idea of exact whole, big picture. उनको पार्ट्स की डेफिनेशन आती थी, पर उनको इंटरकनेक्ट करना या उनके दरमियान जो रिलेशनशिप था वो उसको इस्टेब्लिश नहीं कर पाते थे, या उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं था. जो स्टूडेंट रिलेशनल लेवल पे होते हैं, व्हाट दे कैन डू, उनके जो सब्जेक्ट में मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, दे नो इट कि हाउ दे आर इंटर रिलेटेड, और जब ये इंटर रिलेट करते हैं तो ये किस किस्म की रियलिटी प्रोड्यूस करते हैं, किस किस्म की बिग पिक्चर सामने आती है. So students understand some behind the scene meta connections, find relationship between theory, practice, purposes, and the significance of ideas is clearer to them. Patterns are exposed or imposed on the ideas. Over here, let's take an example कि हमारे पास theory, practice और purpose कैसे हमें guide करती है. So हमारे पास multiple teaching की theories हैं, और थेरीज हमें बताती हैं टीचर्स को कि आपने क्लास में पढ़ाना कैसे, आपकी प्रैक्टिस कैसे होगी, और इसको पढ़ाने का पर्पस या मकसद क्या है. सो इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग बताती है कि कैसे थेरी, प्रैक्टिस और पर्पस आपस में इंटर रिलेट करते हैं और इनका क्या रिलेशनशिप है, मेटा कनेक्शंस क्या हैं,
behind the scene क्या क्या concept underlying है. So these are the relational level understanding of subject of any student. जिसके अंदर ये level होता है वो इन तमाम सवालों के जवाब दे सकता है या इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट की उसकी अपने सब्जेक्ट के बारे में मौजूद होती है. Some students at this level may be able to use this understanding to apply ideas to new situations. Shift is qualitative because the student has moved beyond the concrete into the abstract. Definitely आप इस लेवल से जब अगला लेवल है सब्जेक्ट में अंडरस्टैंडिंग का वो है ही एब्स्ट्रैक्ट लेवल. तो इस लेवल पे एब्स्ट्रैक्शन के कोई ना कोई एलिमेंट्स स्टूडेंट्स में पैदा होना शुरू हो जाते हैं. Learning outcome at the level of analysis, synthesis, creation and evaluation are appropriate here. ये तीनों वो levels हैं जो मैंने आपको बताए कि critical thinking में इस्तेमाल होते हैं और critical thinking इन तीनों को मिला के ही एक concept का नाम है और ये Bloom taxonomy में higher order thinking processes हैं. As the structure of a student's knowledge improves, their motivation to take a superficial approach to learning decreases and they begin to adopt deeper approaches to their learning with greater frequencies. जैसे जैसे स्टूडेंट्स की लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग उनके सब्जेक्ट में इन डेप्थ होती जाती है उनको मज़ा नहीं आता कि वो फिर बेसिक तरीके से पढ़ें. उन्हें मज़ा नहीं आता कि वो सिर्फ रट्टा बेस अप्रोचेस के थ्रू उनको पढ़ाया जाए या समझाया जाए और उन्हें ऐसी एग्जांपल दी जाए जो बड़ी बेसिक हों. वो खुद मल्टीपल इंटरेस्टिंग और मल्टी लेवल एग्जांपल देने के काबिल होते हैं और उन्हें अच्छा लगता है कि उन्हें डीपर अप्रोचेस से लर्निंग अपॉर्चुनिटी मिले. सो किस किस्म के वर्ब्स जो हैं वो हम बना सकते हैं एक्शन रिलेशन लर्निंग आउटकम्स के लिए. एनालाइज, कंपेयर, कंट्रास्ट, इंटीग्रेट, प्लान, समराइज, कंस्ट्रक्ट, स्ट्रक्चर, कंक्लूड or derive, adapt. Now, the same question over here. So, relation level से पहले हमारे पास level था multi-structure level. अब सवाल ये पैदा होता है कि teachers और student क्या करें कि student जो है वो multi-structure level of understanding से relational level of understanding तक आ जाए. So, क्या किया जा सकता है जनाब इसमें? In addition to further overlearning of individual ideas, students need to practice investigating connection between ideas, reasons for them, in which they can be organized and explained relative to each other. Further practice with application can help this. They should also be encouraged to take ideas apart and put them back together or organize them in a new way. So, सबसे पहले students क्या काम कर सकते हैं? स्टूडेंट्स ना सिर्फ जो आइडियाज़ उनके सब्जेक्ट्स में हैं कॉन्सेप्ट हैं उनको अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं इतनी अच्छी तरीके से कि वो उनकी फिंगर टिप्स पे आ जाएं और ऑटोमेटिकली वो उनको अटर कर सकें, बल्कि स्टूडेंट्स को ज़रूरत है कि वो प्रैक्टिस करें और वो देखें कि ये जो मल्टीपल कॉन्सेप्ट हैं इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, आइए कैसे एक दूसरे के रिलेटिव ऑर्गेनाइज होते हैं और कैसे ये इंटरडिपेंडेंट हैं और कैसे ये इकट्ठे एक दूसरे को इफ़ेक्ट करते हैं और इंटरप्ले करते हैं. जब हम उनको एप्लीकेशन लेवल के सवाल देते हैं या एक्टिविटीज़ देते हैं तो स्टूडेंट को मौका मिलता है वो इन तमाम चीज़ों को करने का. किन चीज़ों को? रिलेशनशिप को फाइंड आउट करने का, किन चीज़ों को इंटरडिपेंडेंस को फाइंड आउट करने का, किन चीज़ों को कैसे ये मल्टीपल कॉन्सेप्ट जो आपके एक सब्जेक्ट में होते हैं वो आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं. टीचर्स क्या कर सकते हैं? टीचर्स स्टूडेंट को मल्टीपल किस्म की एक्टिविटीज़ दे सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल उनको मल्टीपल किस्म के आर्टिकल दे सकते हैं रिसर्च में और कह सकते हैं कि इस आर्टिकल्स के अंदर जितने कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अलग अलग वापस बाहर निकालो. फिर वो ये कह सकते हैं कि आप इनको नए तरीके से कंपोज करके अपना रिसर्च टॉपिक डेवलप करो. सो दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ हेल्प स्टूडेंट टू मूव ऑन फ्रॉम मल्टी स्ट्रक्चर लेवल of understanding in their subject to the relational understanding level in their subject. Now, at this stage जब आप स्टूडेंट से वही सवाल करोगे why use the solar taxonomy to create learning outcomes,
सो स्टूडेंट आपको एक इंटीग्रेटेड रेलेवेंट डिटेल के साथ, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया के साथ और कंक्रीट फिगर के साथ तमाम चीज़ों को मिला के एक इन डेप्थ जवाब देंगे। वो क्या है उसको हम रीड आउट करते हैं। Solo helps you to set appropriate expectations as expressed in your learning outcomes because it can be used to diagnose the level of learning you expect and revise accordingly to take into account the level at which a student began and level at which you did like them to leave. This means you can use it to encourage deeper approaches to learning by ensuring that you expect neither too much nor too little and providing a framework to strategically organize the learning expectation you plan. If used as a part of a constructively aligned course, Solo will also help you create assessment tasks that help you to accurately judge the quality of a student learning while being effective learning experiences in themselves. So, student, what do you think about this answer? I do think so कि वो student जिसका understanding level यूनी स्ट्रक्चरल है उसको तो शायद ये सवाल का जवाब समझ ही नहीं आए, जो एक ऐसे स्टूडेंट ने दिया है जिसका अंडरस्टैंडिंग लेवल सोलो टेक्सोनॉमी में रिलेशनशिप के लेवल पे था। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? नाउ दैट इज़ द लास्ट एंड द हाइस्ट लेवल ऑफ सोलो टेक्सोनॉमी। ये वो लेवल है जहाँ स्टूडेंट्स की अपने सब्जेक्ट में अंडरस्टैंडिंग लेवल पीक पे होती है, एक्सपर्ट लेवल पे होती है। और अगेन आपने जितने अभी वर्ड्स पढ़े हैं, क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिसिस, रिलायबिलिटी, एक्यूरेसी, evaluation, and finding out the gaps and differentiating similarity, these all are actually part of a research process. So जब हम बात कर रहे हैं कि जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे होते हैं। अब वो कैसे पहुंचते हैं? वो ऐसे ही पहुंचते हैं जब वो मल्टीपल रिसर्चेस करते हैं और वो रट्टे से लेके उठ के वो उस लेवल तक आ चुके होते हैं जहां वो अपनी सीखी हुई चीज़ को एप्लीकेशन लेवल पे ले आते हैं। एंड दैट इज़ एक्चुअली द रिसर्च। At the extended abstract level, a student can organize, judge, generalize the whole of their learning in order to use and adapt their knowledge in new situations. They are able to shift out the underlying principles and structures behind the ideas they have learned, surface and evaluate embedded assumptions, consider multiple possibilities, and refine their academic learning continuously by integrating it with life experiences as they engage with the world. सो एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट लेवल तब आपके अंदर डेवलप होता है जब आप एक्चुअली अपनी फील्ड में चले जाते हैं, प्रैक्टिकली वहाँ जाके जॉब करते हैं और आप रियल वर्ल्ड में रियल एक्सपीरियंसेस को फेस करते हैं। आप वो एक्सपीरियंसेस बिल्कुल ऐसे हो सकते हैं जिसको आपने अपने स्कूल और कॉलेज में नहीं पढ़ा, लेकिन जो कुछ स्कूल और कॉलेज में पढ़ा है आप वहाँ उसको अप्लाई करके उस प्रॉब्लम्स का सलूशंस निकाल सकते हैं। सो क्या है, ये आपको एक नई सिचुएशन में अपने नॉलेज को अडॉप्ट करने में मदद देता है। सो मोस्टली प्रोफेशनल्स जब अपनी फील्ड में जाते हैं, अपनी जॉब्स में जाते हैं, अपनी जॉब्स में रियल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं और जो कुछ उन्होंने पढ़ा होता है वो वहाँ अप्लाई करते हैं, वो रिसर्च करते हैं, मल्टीपल रिसर्च स्टडीज़ को फाइंड आउट करते हैं और उस काम को प्रैक्टिकली कर रहे होते हैं, तो तब वो एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट लेवल तक पहुँच पाते हैं। Outcomes at the levels of synthesis, creation, and evaluation in Bloom taxonomy are best at helping students reach this final level of solo. क्या एक्शन वर्ब हैं जो कि एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग आउटकम्स बनाने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं? Theorize, generalize, hypothesize, predict, judge, transfer theory, assess, evaluate, interpret, critically reflect, predict, criticize, reason. सो ये तमाम की तमाम एक्शन वर्ब एक्चुअली रिसर्च में इस्तेमाल होते हैं। नाउ
what teachers and student can do कि वो relational level of understanding of a subject से student को कहाँ ले जाए, expert level पे. Practice with synthesis and evaluation will help a student develop greater understanding of relationship between ideas and the reasons things are done a certain way. Definitely यहाँ से काम टीचर का ख़त्म हो जाता है और स्टूडेंट का अपना शुरू हो जाता है. जब वो अपनी कैरियर में आ जाता है, प्रोफेशनल लाइफ में आ जाता है, तो व्हाट हेल्प्स द स्टूडेंट और अ पर्सन टू रीच टू द लेवल ऑफ एक्सपर्टीज? Practice of these higher order thinking processes, synthesis and evaluation. They are forced to use this knowledge in increasingly unfamiliar, varied situations. Their ability to generalize and adopt will grow. जैसे जैसे प्रोफेशनल जितने चैलेंजिंग किस्म के उनके पास असाइनमेंट्स आते हैं और ऐसी असाइनमेंट्स आती हैं जो उससे पहले उन्होंने कभी ना की हो, अनफेमिलियर हो, वैरायटी ऑफ टाइप की हो और नई नई सिचुएशंस में जाके उन्हें काम करना पड़े और प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी पड़े, उतना उनका एक्सपोजर बढ़ता है, उतना उनका जो नॉलेज होता है वो एक्सपेंड होता है, उतना उनको समझ आती है कि हाउ टू जर्नलाइज वट एवर दे हैव लर्न, to what extent it is generalizable, or that's how their expertise actually develops. Now, अगर यही सवाल उनसे किया जाए जो कि एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे हैं, एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे, तो उन स्टूडेंट के जवाब कैसे होंगे? The learner is forced to think beyond the given and bring in related prior knowledge, ideas, information in order to create an answer, prediction, hypothesis, extend the given to a wider range of situations. Knowledge at the relational and extended abstract levels require more cognitive capacity. Relationship between ideas must be analyzed, interpreted, synthesized, and evaluated. At the extended abstract level, it must also be abstract into organizing principles to guide reasoning and create generalization. So student, these all is actually the vocabulary that we used in qualitative and quantitative research. So it is very difficult for me to explain it to you in a very precise way कि ये क्या है. ये तमाम की तमाम रिसर्च की, क्वांटिटेटिव रिसर्च की, क्वालिटेटिव रिसर्च की टेक्निकल जॉर्गन्स हैं और जब हम एब्स्ट्रैक्ट, एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट लेवल की जो अंडरस्टैंडिंग होती है जिस पर्सन की, हम उससे ये सवालात करते हैं तो वो हमेशा किसका सहारा लेते हैं सवालात का जवाब देने के लिए? किसी एक किताब का नहीं, किसी एक रेफरेंस का नहीं, आर्टिकल्स का, रिसर्च फाइंडिंग्स का, पॉलिसीज़ का, प्रैक्टिसेस का, और कैसे वो चीज़ें जनरलाइज होती हैं एक जगह से दूसरी जगह पर और उसके क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं. सो उसका आंसर जो है वो रिसर्च फाइंडिंग्स की बेस के ऊपर होता है. दैट इज़ द सिंपल वे टू अंडरस्टैंड इट. फॉर एग्जाम्पल, हमने स्टूडेंट से वही सवाल किया, वाई यूज द सोलर टेक्सोनॉमी टू क्रिएट लर्निंग आउटकम्स. सो एक्सपर्ट का क्या जवाब होगा? Because extended abstract go beyond what is expected, providing useful example of this is difficult. So, expert का सवाल का जो जवाब है वो आपकी एक्सपेक्टेशन से हायर हो सकता है. जो आप नहीं जानते हैं एक्सपर्ट वो भी जानता होता है और आपको एक हायर ऑर्डर पे एक सवाल का जवाब देता है. So it is not easy to give an example. So we don't have an example over here. We need to find it out from the expert. And I'm sure कि expert का जवाब इतना छोटा नहीं होगा कि वो एक स्लाइड पे पूरा आ जाए. So dear students, that's all for the solar taxonomy. I'm sure आपको solar taxonomy के तमाम levels समझ आ गए होंगे और आपको पता चल गया होगा कि ये तमाम levels क्या बताते हैं. ये तमाम levels बताते हैं कि स्टूडेंट का लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग उसके सब्जेक्ट के बारे में कितना है. हर स्टूडेंट, चाहे वो आप हो या मैं हो या कोई और हो, हम सब जब कभी भी पहली दफ़ा कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो हम सारे के सारे पहले लेवल पे होते हैं और फिर आहिस्ते आहिस्ते विद प्रैक्टिस, विद हार्ड वर्क, विद रीडिंग, विद एफर्ट हम अच्छे लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग तक पहुँचते हैं. इट टेक्स टाइम, it takes effort, it takes hard work,
and definitely a higher level, expert level तक दो चार दिनों में नहीं आते. It needs years of effort and years of research. I hope you will going to get it. Please go through the article. Once you go through the article, you will going to get a better picture of what the solar taxonomy is, how students can use it for themselves uh, to determine and frame their um, progress of understanding in their subject, and how teachers can use it to help a student to move on from one level of understanding to the other level of understanding. Thank you so much.